Today's our topic is molecular analysis of shoot apical meristem. Molecular analysis in shoot apical meristem have been done in many plants like Arabidopsis, maize, tobacco, tomato, and rice. Many of these belong to classes of considered to be regulatory, controlling the expression of downstream genes. To studying the shoot apical meristem, we have isolated the mutants of the impaired meristem's activity in the embryo. Mutant seedlings of Arabidopsis, designated as shoot meristemless and joile, do not express the differentiated characteristics of a shoot apical meristem. Initiation of the meristem is blocked at the torpedo-shaped stage of the mutant embryos. The rest of the seedlings, especially the root, hypocotyle, and cotyledons, appear normal, but no new organs develop between the cotyledons. Invaluable information on the origin, organization, and function of shoot meristem has come from genetic and molecular studies of Arabidopsis thaliana and a few other plants such as maize. The primary shoot apical meristem in Arabidopsis is reported to become apparent relatively late in embryogenesis after the cotyledons are initiated. The shoot apical meristem is initiated in the mid-globular embryo itself in the form of epiphysis. The earliest indication of the shoot apex is the appearance of a pocket of meristematic cells in the upper half of the globular embryo. These cells are the direct descendants of the 8-celled proembryo. Clear structural and cytological and cytochemical differences exist between these progenitors of the apical meristem and the surrounding cells. These differences occur before the shoot apex is enclosed by the cotyledons, suggesting that the latter are the first formating organ produced by the embryonic apex. The visibility of the shoot apex is invariably associated with a change in the shape of the embryo from globular to chordate, and this changes is attributed to the continued meristematic activity of the surface layer and the underlying cells in the shoot apical part of the embryo. Differentiation of the shoot apical meristem stops when the embryonic apex becomes dome-shaped and often enters into a dormant state or quiescence in the seeds. अगर हम शूट अपेक्स मेरिस्टम के अंदर अगर हम लोग मेरिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूलर एनालिसिस करते हैं मॉलिक्यूल लेवल पे, तो हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जीन्स की जब हम स्टडी करते हैं तो जो म्यूटेशंस होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो म्यूटेशंस क्या होता है? सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन प्लांट या ऑर्गेनिज्म। तो जो चेंजेस के कारण उसके अंदर क्या होगा, क्या चीजें हो रही है। तो अगर हमें प्लांट्स के एम्ब्रियो के अंदर है, जैसे कि शूट एपिकल मेरिस्टम है, उसके जो एम्ब्रियोस है उनमें जो म्यूटेंट्स होते हैं उनको स्टडी करने से हम ये पता करते हैं कि इसके म्यूटेशन के कारण इसके अंदर जो कैरेक्टर था वो नहीं हो रहा है। तो उसकी स्टडी के लिए हम लोग जितने भी म्यूटेंट, जिनमें भी सीडलिंग में म्यूटेशन हो चुका है, ऐसे म्यूटेंट्स को हम चुनते हैं। तो जो डिफरेंट स्टेजेस है, जैसे कि जो एम्ब्रियो की है 8 सेल स्टेज, उसके अंदर एपिकल मेरिस्टम होना शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सी अवस्था में कौन सा ऐसा जीन है जिसके कारण कि इसके अंदर ये विभेदन पाया गया है शूट एपिकल मेरिस्टम में। तो जो पहले हम लोग जो
स्टडी कर रहे थे वो हम लोग कर रहे थे स्ट्रक्चर बेसिस पे कि इसका क्या क्या स्ट्रक्चर है शूट एपिकल मेरिस्टम का, कौन कौन सी लेयर्स है इसके अंदर। तो वो हम कर रहे थे सर्जिकल एक्सपेरिमेंट्स है या उनके आधार पे हमने उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के देख लिया या ट्रांसफर सेक्शन काट के देख लिया कि इसके अंदर ये सेल लेयर्स है। लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे जैसे कि हम जीन्स का पता लगाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन है, उस हिसाब से हम लोग इसका मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स हैं या जैसे है जिनके आधार पर हम इसका जो जीन्स है कौन सा जीन्स इसके अंदर है और कौन सा नहीं है। तो जो इनिशिएशन ऑफ शूट मेरिस्टम स्टेम सेल्स इन अरेबिडोप्सिस एम्ब्रियो एंड ऑर्गेनाइजिंग सेंटर प्रीकर्सर होता है सेल लीनिएज एक्सप्रेसिंग WS रेड इज एस्टैब्लिश्ड इन द 4 सब एपिडर्मल सेल्स ऑफ द 16 सेल एम्ब्रियो। तो ये जो 16 सेल एम्ब्रियो है यहाँ पे जो रेड जोन दिख रहा है यहाँ पे वो WS जो जीन है वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से। और ये जब एम्ब्रियो 16 सेल जब 16 उसके अंदर कोशिका विभाजन की अवस्था में होता है तो ये जो सब एपिडर्मिस नीचे वाले जो L2 लेयर है यहाँ पे हमें ये जो सब एपिडर्मल पार्ट है यहाँ पे ये हमें ऑर्गेनाइजिंग सेंटर दिखाई देता है। स्टेम सेल्स आर इंड्यूस्ड इन हार्ट स्टेज एम्ब्रियोज, और ये जो हार्ट स्टेज एम्ब्रियो है यहाँ पे हमें स्टेम सेल्स दिखाई देते हैं। However, in many plants, including many legumes, the shoot apical meristem of the embryo is very active and produces a number of leaf primordia. Even before germination, the differentiation of the shoot apical meristem in the embryo makes obvious the pre-existing cryptic polarity of the latter. किन्हीं किन्हीं प्लांट्स में जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है काफी ज्यादा एक्टिव होता है और वो काफी सारे कैसा होता है एक्टिव है कि इसके अंदर काफी सारे लीफ प्राइमोर्डिया उसके अंदर से निकलते हैं जर्मिनेशन से पहले। तो ये जो है कि जो हम कहते हैं कि जो एम्ब्रियो है जिसमें कि एक पोलैरिटी होता है कि 2 पार्ट होते हैं, एक तो वो जिसमें कि शूट निकलता है और एक नीचे होता है रूट। ये पोलैरिटी जो एम्ब्रियो में बनती है उसको हम उसके कारण उसके अंदर पोलैरिटी डेवलप होती है। तो ये जो एम्ब्रियो है उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे 16 सेल अर्ली ग्लोबुलर, इसमें ग्लोबुलर अवस्था है, ये लेट ग्लोबुलर स्टेज है, ये ट्रांजिशन स्टेज है, ये हार्ट शेप्ड स्टेज और टॉर्पिडो स्टेज। अलग अलग जो स्टेजेस होती है एम्ब्रियो की जिनमें कि सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के कारण में जो उसका जो आकार होता है उसमें अंतर आता है। तो यहाँ देखिए छोटा आकार में है, जैसे सेल की जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे एम्ब्रियो के आकार में परिवर्तन होता जाता है। तो उसको हम लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ जब 16 सेल की स्टेज होती है तो यहाँ पे ये वुश जीन का एक्सप्रेस होता है एम्ब्रियो के अंदर। ये देखिए इसमें लेयर तारे जो लेयर्स दिख रही है कहाँ पे हो रहा है। फिर उसके बाद में ये COC2 है, ये जीन एक्सप्रेस होता है कप शेप में इसके साइड्स में। ये STM है, ये एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पे। ऊपर ये हो रहा है इंडक्शन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ CLV3 एट द लेट हार्ट शेप स्टेज। तो ये अलग अलग जीन्स है, जैसे बीच में CLV3 है, उसके बाहर STM है, ये COC2 है, और ये बाहर की साइड में जो कॉटलिडन्स होते हैं वो दिखाई दे रही है। इसका अबैक्सियल सरफेस है और ये इसकी अडेक्सियल सरफेस है। तो ये तो ऊपरी सतह और निचली सतह है। अब ये जो बाद की जब स्टेज में जो सेंट्रल जोन है यहाँ पे आप देखिए CLV3 जो दिखाई दे रहा है और ये रिब जोन है, ये इसका पेरिफेरल जोन है साइड वाला शूट एपिकल मेरिस्टम का।